Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Divyanshu Singh and I'm selected as Deputy Collector with rank 34 in UP PCS. In this lecture, we would be covering the energy resources, what are the different types of energy resources, what are different power projects which are located in Uttar Pradesh, and what are the different types of projects based upon different types of energy being used. तो वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो एनर्जी रिसोर्सेज होते क्या हैं, राइट? दीज आर ऑल दोज फॉर्म्स ऑफ फ्यूल्स जिनको हम यूज करते हैं ताकि हम किसी भी तरीके की हीट को जनरेट कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, राइट? या फिर कोई अदर एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस में उसका इस्तेमाल कर सकें. सो एनर्जी रिसोर्सेज हम कोल पावर प्लांट में कोल को एज एनर्जी यूज करते हैं, एज एनर्जी रिसोर्स, राइट? सो दैट वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थ्रू दिस कोल वी जनरेट हीट and through this heat we actually heat up water to steam. Water gets converted into steam and that steam is used to run. Steam actually runs those turbines, right? And from those turbines electricity is produced, right? At the same time अगर हम बात करें अलग कोई और energy resources की, तो we have also nuclear energy resources, we have hydropower resources. So एक एक करके we would be talking about each one of them. तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि हम क्लासिफिकेशन एनर्जी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कितनी कैटेगरीज में करते हैं, तो ब्रॉडली देयर आर 3 कैटेगरीज. वन इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट? एंड अबाउट रिन्यूएबल रिसोर्सेज we know that renewable resources are replenished. These are replenished in a short span of time, right? छोटे समय में they are replenished. Every day you get these renewables. If you talk about the solar energy, every day we get this solar energy. So it is what? ये renewable resource है, right? At the same time, if you talk about water resources, so water resources से जो हम डैम या रिजर्वॉयर बना करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, that is also renewable resources. But if we talk about coal, so coal उसकी depositions they are limited, right? Coal is formed over millions of years, so it takes time for it to be formed, and as a result it is not a renewable resource. At the same time अगर हम बात करें petrol and natural gas, they are also formed over millions of years, right? तो इसलिए अगर आज हम इनकी सप्लाई को एग्जॉस्ट कर देते हैं तो कल हमको इनकी सप्लाईज नहीं मिलेंगी, right? So we have to be cautious here, right? We have to be more cautious, right? We need to depend more upon the renewables because the non-renewable resources, their supply is limited and it will exhaust one day. So we need to develop upon these renewable energy resources, right? Then we have this fossil fuel based resources, which are actually the non-renewable one. And they are formed, how they are formed? When these plants and animals, they are dead, right? Dead plants and animal deposits. Actually what happens, if suppose this is a forest area. Now due to any reason, and the reason can be, यहाँ पे रीजन आपका हो सकता है कि इस लैंड का सबमर्जेंस हो जाए, ये लैंड के ऊपर, ये लैंड जो है इसके ऊपर पानी आ जाए, राइट? एंड दिस एंटायर एरिया इट गेट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर. सो यहाँ पे सबमर्जेंस होगा, तो दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स हु माइट बी लोकेटेड हियर, दे वुड बी डेड नाउ, राइट? बिकॉज अब यहाँ पर एग्जैक्ट जो इनको लिविंग कंडीशंस रिक्वायर्ड थी वो अब यहाँ पर नहीं है, तो प्लांट्स दे विल नॉट बी सर्वाइविंग. So these will become dead, and over a period of millions of years, these will be converted into petroleum,
coal, natural gas, these kind of fuels, right? So that is why these are called fossil fuels, because these are actually the fossils of dead plants and animals, which these are fossils of dead plants and animals which got either buried under the earth surface or it got submerged under water, पानी के अंदर submerge हो गया, that actually over a million of years time period they actually get converted. Why? Because यहाँ पे time भी ज़्यादा necessary है, time ज़्यादा involved है, millions of years. At the same time the pressure conditions in which they are formed, जो pressure की condition है, जो temperature की condition है, they are found to be high, and as a result these fossils of these plants and animals, they get converted into the resources. Then we have these nuclear resources. And what are these nuclear resources? These are certain radioactive elements. अब ये कुछ radioactive elements होते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, जिरकोनियम है. These are certain radioactive elements जिनको हम as a nuclear fuel use करते हैं, nuclear fission reaction कराने में, right? Nuclear fission reaction कराने में, and because of that fission reaction we can generate power. So उससे हम power generate कर सकते हैं. So there are certain elements like that, and these elements, these are actually formed. अगर आप यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम was formed when the universe was being formed. So what happened? There was this nebula. This is a theory only. This is a hypothesis that there was a nebula, right, which got exploded. It got exploded, and because of the explosion, the material which got, जो भी मटेरियल इस नेबुला से इजेक्ट हुआ था, द मटेरियल इजेक्टेड फ्रॉम इट, it led to the formation of universe. It led to the formation of planets, sun, and elements like iron, uranium, these were formed then. So these radioactive elements, these are found in Earth's interior, and they come out over Earth's surface through several processes like volcanism, right? या फिर wherever you find tectonic activities to be very active, right? There you get these kind of resources, okay? So resources can be classified. हम resources को अलग अलग criteria के basis पर अलग अलग तरीके से classify कर सकते हैं. And what are those classifications? One is the natural resources. So natural resources are the ones which are naturally given to us, जो nature ने हमको दिए, right? And then there are human resources, which are actually created by humans through some technology development. Humans are actually creating those resources, right? So that is what are the human resources. So अगर हम natural resources की बात करें, उसमें भी there are two categories of resources. One is the renewable resources, other is the non-renewable. अब renewable और non-renewables के बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं, right? So renewable की अगर हम बात करें, there is continuous flow of these resources. That means कि the supply is not limited. Supply is not exhaustible. And for non-renewable resources, we have the supply which is exhaustible. In that also, we can classify them to be recyclable and non-recyclable. Okay. So we have discussed about them, right? Then we talk about the sources of energy. Energy resources,
कि क्या क्या एनर्जी के क्या अलग अलग सोर्स हो सकते हैं. सो वन इज द कन्वेंशनल सोर्सेज, other is the non-conventional sources. Conventional sources, their supply is readily available to us, right? The technology which is used to harness these resources, जिस टेक्नोलॉजी से हम इन रिसोर्सेज को हार्नेस करेंगे, दैट इज ऑल्सो रेडिली अवेलेबल टू अस. तो उन रिसोर्सेज को हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं, जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल है, जिनको हमें यूटिलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी भी आसानी से अवेलेबल है. सो इफ यू टॉक अबाउट द कमर्शियल स्केल पर ऐसे कौन से सोर्सेज हैं, सो वन इज द कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी. These are what? These are conventional sources because इनकी सप्लाई और इनका यूटिलाइजेशन is can be easily done, right? Then non commercial में, चूंकि कमर्शियल लेवल पे नहीं, लोकल लेवल पे पीपल जो है दे यूज इट, दैट इज स्ट्रॉ, फायरवुड एंड ड्राइड डंक, राइट? ड्राइड डंक इज बेसिकली द गोबर थ्रू विच people actually generate heat, generate their own source of energy. Then we have this non-conventional sources. Non-conventional sources में mostly you can see these are renewable resources. These are renewable resources. अब अगर मैं solar energy की बात करूँ, तो solar energy की में problem क्या है? Why these are non-conventional? Because the adequate levels of technology were not developed earlier. Now we are developing it, but still there are several challenges. What are those challenges? अगर हम solar photovoltaic cells की बात करें, so India, it actually imports the silicon wafers from outside. So यहाँ पर हमारे पास import dependence है for the production of these PV cells, right? So that is a drawback. So इसलिए ये non-conventional sources होते हैं, because there are some or the other loopholes. Loopholes can be technological, that you might not have adequate technology to harness those resources. So इसलिए most of those sources they get waste. So the conventional sources, they are most commonly used किए जाते हैं. So we have coal, most commonly use किया जाता है. पेट्रोल, everybody use it. ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पेट्रोल एंड डीजल. So these are more commonly used. Their supply is exhaustible. We know कि coal, petroleum reserves, उनकी supply जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगी, right? Because these are replenished over millions of years. So इसलिए यहाँ पर supply जो है that is exhaustible. At the same time, these resources they pollute environment. When combustion of coal takes place, there are several impurities in coals also. Sulfur as an impurity is there in coal, right? And when combustion of coal takes place, harmful greenhouse gases also are emitted. Okay, so sulfur dioxide is emitted, carbon dioxide is emitted. Now these are what? These are greenhouse gases. और इनका क्या effect होता है environment पे? They actually raise the global temperatures. They help in raising the temperatures. And then there are several other problems. When the temperatures are rising, उसके other consequences हैं. Consequences in the form of, we see कि glaciers are melting. Glaciers melt हो रहे हैं, उसकी वजह से sea level rise होंगे तो many of the islands जो हैं वो submerge हो सकते हैं, right? At the same time temperatures are increasing. So temperature increase होंगे तो there might be the case कि cyclonic activity, जो extreme events हैं वो बढ़ जाएं, cooling demands हैं वो बढ़ जाएं, animals हैं उनके लिए there would be problems. So that is why there are causing environment pollution, right?
Then coal and fuel wood, these are the examples of conventional energy resources. Petroleum, natural gas, these are also the examples of conventional energy resources. So if you talk about conventional energy resources, these are several resources. If you talk about coal, hydro energy, nuclear energy, natural gas and crude oil. So these are certain conventional energy resources. Then if I talk about कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं इनके सोर्स जो है हमने रिसेंटली आइडेंटिफाई किए हैं. जैसे अगर आप बात करें सोलर एनर्जी, so about solar energy we are talking since 2008, right? We had this national mission for enhanced energy efficiency. We had this national action plan for climate change, national action plan for climate change in 2008. And under this, इसके अंडर में there are 8 missions. इस मिशन के अंडर में 8 मिशंस है और वो 8 मिशंस में से एक मिशन है सोलर, नेशनल सोलर मिशन, right? So we are talking about developing solar energy since the last decade, right? And today we are able to achieve. अब आज हमने कुछ अचीवमेंट इसमें लिया है. Now we are increasing the share of solar energy. बट स्टिल हमें अभी इसमें बहुत ज्यादा काम आगे करना बाकी है, राइट? सो इनके जो सोर्सेज हैं दे आर रिसेंटली आइडेंटिफाइड. दीज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली. अगर आप सोलर एनर्जी की बात करो या फिर विंड एनर्जी की बात करिए, सो उसका इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट दैट इज नेग्लिजिबल, राइट? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आर नेग्लिजिबल. दे अकर इन अबंडेंस. इनकी सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा है एंड वी नीड टू हार्नेस दैट, right? So solar and wind energy, these are important. ये आपके important non-conventional renewable energy resources हैं, right? So you can see the geothermal energy, wind energy, solar energy, hydroelectric, biomass, nuclear. These are several different forms of energy जिसको हम utilize करते हैं for the production of power, production of electricity, right? तो अगर हम बात करें कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस जो कि उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है, राइट? सो वी फाइंड कोल. कोल हमको मिलता है गोंडवाना कोल इन मिर्जापुर सोनभद्र वाला जो रीजन है वहां पर, राइट? So there are several thermal power stations in Uttar Pradesh and hydroelectric power projects in UP. So if we talk about these thermal power stations in Uttar Pradesh, they are actually dependent upon coal. Coal पे dependent है. Now this coal that might be locally available and उत्तर प्रदेश में coal जो है वो हमको बहुत ज्यादा स्केल पे नहीं मिलता है, right? It is found in some of the areas like Mirzapur, Sonbhadra. Besides that, in the Ganga plains you don't get coal, right? So if the power plants would be यहाँ पर located होंगे power plants, then they might be also importing coals. Importing coal from other regions, right? And those other regions can be the areas where the coal is readily found. So what can be those areas? If you talk about Jharkhand, Odisha, these are the areas where coal is actually found. West Bengal. So यहाँ coal large amounts में मिलता है. So wherever those thermal power plants in Uttar Pradesh be located, जहां पर कोल की सुविधा लोकली अवेलेबल नहीं है, वहां पर कोल जो है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, राइट? एंड देन इट इज यूटिलाइज्ड फॉर पावर प्रोडक्शन. सो थर्मल पावर प्लांट्स, these are mostly based upon coal. Coal is readily found in India, right? कोल के काफी ज्यादा रिसोर्सेज इंडिया में मिलते हैं. एंड थर्मल पावर प्लांट्स which are fossil fuel based.
they actually utilize these coal, right? So talking about अगर हम coal की बात करें, coal it is an inflammable organic substance. Organic substance, it is made up of carbon, right? It is also known as black gold, and the composition is hydrocarbons which are found in the form of sedimentary rocks. So how these coals are formed? We have discussed that the dead plants and animals, when they get either buried or submerged, right, then they might get converted into these fossil fuels. Now also there is certain कुछ other caveats भी हैं, like time period that has to be high, right, millions of years. At the same time, pressures should be high, temperature conditions, these all actually are required for the formation of coal, right? So if I talk about coal, it constitutes 70% of commercial energy being produced in the country. Mostly we use coal for the production of energy because coal is readily found in our country. And अगर हम बात करें उसमें भी, तो power sector and industries, these are the largest consumer of coal. Around 94% जो कोयला है उसका यूटिलाइजेशन आपका पावर सेक्टर में होता है और इंडस्ट्रीज में होता है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील, इट एक्चुअली रिक्वायर्स कोल, राइट? क्यों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को कोल की जरूरत होती है? बिकॉज हमें आयरन कभी भी अपनी सिंगल एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलता. वी ऑलवेज गेट आयरन इन द फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड्स, और हमें स्टील बनाने के लिए आयरन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करना होता है. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन आयरन, नॉट ऑक्साइड्स. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, आयरन खाली हमें चाहिए, ऑक्साइड्स नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं आयरन ऑक्साइड्स की कोल से. सो क्या होगा यहाँ पे, कोल इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द कार्बन, राइट? सो दिस एक्सेस ऑक्साइड्स, they would be combining with the carbon and then they would be converting into carbon dioxide and we'll get this iron, right? We'll get this iron alone that can be used, इसको हम use कर सकते हैं steel के production में, right? So that is why we need coal in iron and steel industries also. So coal के अलग अलग types होते हैं, right? We have this anthracite coal, उसके बाद हमारे पास bituminous coal होता है, देन सब ब्यूटिमिनस कोल होता है, उसके बाद लिग्नाइट आता है एंड देन पीट आता है. सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट आपको एंथ्रासाइट में मिलेगा, देन बिट्यूमिनस कोल, उसके बाद आपको सब बिट्यूमिनस एंड देन लिग्नाइट कोल में मिलेगा. एंथ्रासाइट से भी ज्यादा कोल का कंटेंट आपको ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट से भी ज्यादा कोल का कंटेंट आपको, कार्बन का कंटेंट आपको डायमंड में मिलेगा. So diamond, it is the hardest known substance and it has the largest concentration of carbon, right? So that is how you rank different kinds of coal based upon their carbon content. So anthracite coal is the best quality coal. After that we have this bituminous coal, right? And coking coal is actually the coal which has high carbon concentration. And it is used in the production of steel. So how coal is formed? You can see this is the natural vegetation, forested area. So there would be several plants, animals in this region, right? But because of some reason, this particular area, it gets subjected or it gets buried या फिर submerged. So this will be converting to peat. Now peat जो है ये कम time period में form हो जाता है. This is the initial stage. ये शुरुआती समय होता है कोल के फॉर्मेशन का, सबसे इनिशियल स्टेज. तो सबसे कम टाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ होता है, सबसे कम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है. एंड आप इस इमेज में देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हीट की कंडीशंस भी बढ़ रही हैं,
एंड प्रेशर की कंडीशंस भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, राइट. सो दिस पर्टिकुलर पीट इज कन्वर्टिंग टू लिग्नाइट, राइट. इससे ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, देन इट वुड बी कन्वर्टिंग टू कोल, एंड दैट कोल वुड बी बिट्यूमिनस कोल, एंथ्रासाइट कोल, right. So the temperature, pressure, depth conditions, they all are increasing. So यहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोल कैसे बनता है, राइट. एंड इंडिया में हमें कोल कहाँ कहाँ मिलता है? सो इंडिया में वी गेट मोस्टली द कोल इन द गोंडवाना कोल बेल्ट, right. And what is this Gondwana coal belt? Gondwana is actually the time period. Gondwana is the time period when we saw there was huge rifting of the earth surface took place. And what happens in rifting? Rifting में क्या होता है कि लैंड का जो एरिया है, इट गेट्स ब्रोकन ऑफ, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं इस तरीके से, एंड देन यहाँ पे एक फॉल्ट टाइप का डेवलप हो जाता है. नाउ यू सी कि अगर लैंड में क्रैक्स आ जाते हैं, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, फॉल्ट्स डेवलप हो जाते हैं, तो यहाँ पे इफ देयर वुड बी फॉरेस्ट लोकेटेड, दे वुड बी बरीड. फॉरेस्ट यहाँ लोकेट होंगे तो दे वुड बी बरीड, राइट. एंड वी हैव सीन कि जब फॉरेस्ट, जो भी हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि वेजिटेशन है या एनिमल्स हैं, दे गेट बरीड. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम period, right, millions of years, it will be converted into coal, petroleum, right. And more the time, more good quality of coal would be found, right. So we have seen this rifting in several time periods. If I talk about the Carboniferous period, so Carboniferous period, it was around 350 million years ago, right. And then we had this Gondwana period. This was around 250 million year ago. ये 250 million साल पुराना है, right. This is 350 million years old. So Carboniferous coal इंडिया में नहीं मिलता है हमको. It is mostly found in European region. And you can now know कि Carboniferous coal की क्वालिटी अच्छी होगी या गोंडवाना की, क्योंकि गोंडवाना कोल कम पुराना है, राइट. इट इज रिलेटिवली न्यूअर कंपेयर टू द कार्बोनीफेरस, तो इसलिए क्वालिटी वाइज कार्बोनीफेरस कोल ज्यादा अच्छा होगा. इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हम कैसे देखते हैं कि कितना कार्बन कंटेंट है, एंड कार्बन कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा टाइम पीरियड, प्रेशर, टेम्परेचर की कंडीशंस इन्वॉल्व होंगी. सो दीज आर द एक्चुअली पीरियड्स जब टेक्टोनिक फोर्सेस दे वर वेरी मच एक्टिव, एंड टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से क्या होता है, वी फाइंड दिस काइंड ऑफ रिफ्टिंग टेक्स प्लेस. सो ऐसी रिफ्टिंग इंडियन पेनिनसुला में गोंडवाना पीरियड में देखने को मिली थी. गोंडवाना पीरियड में तभी यहाँ पर जो कोल मिलता है हम उसको गोंडवाना कोल के नाम से जानते हैं. सो ये हमें रिफ्टिंग कहाँ कहाँ देखने को मिली, दामोदर महानदी बेल्ट वाले रीजन में, राइट. देन कृष्णा, ये जो आप देख रहे हो, दीज आर द फॉल्ट लाइन्स व्हिच वर क्रिएटेड. दामोदर, सोन, महानदी, so these are the areas where you get such kind of coals, right. So Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, these are some of the important areas where the coal is concentrated. West Bengal, and these are the areas which actually saw rifting, right. So अगर हम बात करें गोंडवाना कोल फील्ड्स कहाँ कहाँ मिलती है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन हमको कोल की नहीं मिलती है, राइट. नॉट वेरी हाई. हमको थोड़े अमाउंट में इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सोनभद्र,
इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिर्जापुर हमको ये गोंडवाना कोल मिलता है। उसके अलावा जो ज्यादा कंसेंट्रेशन है गोंडवाना कोल का, दैट इज फाउंड इन द एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राइट, एंड वेस्ट बंगाल। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव दिस टर्शरी कोल फील्ड्स। नाउ व्हाट इज दिस टर्शरी कोल फील्ड? हमने देखा था कि कार्बोनिफेरस कोल फील्ड्स होती हैं which were found in the Carboniferous period. Then we saw कि गोंडवाना टाइम पीरियड आया था 250 मिलियन ईयर्स अगो, तब हमें गोंडवाना कोल फील्ड्स मिलती हैं। उसके बाद एक टर्शरी पीरियड आया था, राइट। सो अगर हम क्वालिटी में जाए तो गोंडवाना कोल बेहतर होगा टर्शरी कोल से, क्योंकि टर्शरी कोल और नया है, राइट। सो टर्शरी कोल फील्ड्स दीज आर एक्चुअली फॉर्म्ड जब हिमालयाज बन रहे थे। When Himalayas were in formation stage, what happened? It also needed, यहाँ पर भी tectonic activities, they were very much active, and tectonic activities क्या होती हैं? These are actually the plate movements. हमको पता है कि जो अर्थ की सरफेस है वो कोई एक रॉक सरफेस नहीं है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट अर्थ, इट इज डिवाइडेड, ये डिवाइडेड है कई डिफरेंट प्लेट्स में, राइट। एंड दीज प्लेट्स, दीज एक्चुअली मूव, these are not static, and these plates they actually move. So उसकी वजह से हमें टेक्टोनिक मूवमेंट्स देखने को मिलता है, and these tectonic movements, these are actually responsible, ये responsible है for several processes like rifting, right, like formation of mountains. So when this will take place, it will be involving several rifting, folding, faulting, right. So उसमें क्या होगा? The vegetation that might be buried and it will be converted into coal fields. So इस तरीके के हमें tertiary coals असम में मिलते हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। Now we know कि these are the Himalayan states, right, and Himalayas were formed in the tertiary period. So that's why we get this tertiary coal there, right. Then we have this lignite. So lignite is the most low grade quality of coal. Right? यहाँ पर जो time period है, that is even less. Time period involved in the formation of the coal, that is even less. So we find these lignite coal to be not so good in quality. एंड हम क्वालिटी कैसे जज करते हैं कोल की? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को देख के, कि व्हेन वी आर बर्निंग दैट कोल, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इट इज बीइंग एबल टू जनरेट, उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। देन वी ऑल्सो सी कि कोल में मॉइस्चर कंटेंट कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना कोल की क्वालिटी बेकार होगी। मॉइस्चर के अलावा हम एश कंटेंट देखते हैं, राइट। देन वी ऑल्सो सी सल्फर कंटेंट कितना है कोल में। So based on these we judge the quality of coal, right? So lignite कहाँ मिलता है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरला, वेस्ट बंगाल एंड पौंडीचेरी, right? Then we have this peat. Peat is actually the initial stage. It is the initial stage of formation of coal, right? यहाँ पर क्या होगा? ऐसी जगह जहां पर आप वाटर लॉगिंग की कंडीशन, वाटर लॉगिंग, जहां पर वाटर लॉगिंग क्या मतलब होता है कि पानी कहीं पर इकट्ठा हो रहा है, राइट, बट दैट पानी, वाटर इज नॉट एबल टू एस्केप। सो यहाँ पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है, देयर इज डिफेक्टिव ड्रेनेज, एंड इस डिफेक्टिव ड्रेनेज की वजह से क्या होगा? If these areas which are also having water logging का issue, right, because there is enough water supply, at the same time यहाँ पर vegetation बहुत ज़्यादा अच्छा है, so there is enough vegetation also. So vegetation we know कि it also decays, right, it decays, and dead plants and leaves, they fall down from these plants, right, and they get concentrated in these waterlogged area, right, and then they get decomposed, and decomposition they get converted into peat,
right? So these are also used as energy resources, but these are very bad quality of resources, right? They are very much polluting also, polluting environment. Okay, so ये हमें कहाँ मिलता है? These kind of resources we find in the Nilgiri Hills, कश्मीर वैली, वेस्ट बंगाल में आपको ये कोलकाता और गंगा डेल्टा में मिलता है, राइट? देन उत्तर प्रदेश में हमें कोल कहाँ कहाँ मिलता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, राइट? इन द बराकर बेल्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि क्या है, कहाँ मिलता है, and districts are Sonbhadra and Mirzapur, right? And it is the primary source. This is the most primary source of energy, electricity production, जो कि यहाँ पर thermal power plants है. These are mostly coal fired, right? So coal that might be locally sourced from these areas. Otherwise, coal would be imported. And अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, so उत्तर प्रदेश holds 8th position in terms of coal reserves, right? And coal reserves, these are not very highly concentrated in UP, right? Then thermal power projects which are based on coal, several projects, these are located in Uttar Pradesh. And thermal power projects क्या करते हैं? How do they produce power? So they actually use coal for heating purposes. कोल से क्या करते हैं? हम हीट करते हैं. हीट किसको करते हैं? वाटर. वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम, राइट? और उस स्टीम से हम टर्बाइन्स को रन करते हैं. टर्बाइन्स को रन करते हैं, एंड दोस टर्बाइन्स दे मूव एंड दे एक्चुअली कन्वर्ट and power, electricity is generated, right? So coal is used for heating purposes, and these coal, either it would be from a local source which is actually located in UP, or it would be imported from the areas where enough amount of coals are found, right? So we have certain power projects. This is Hardua Ganj thermal power station. Now here important for you to know is where these projects are located. So उनका location important है, आपको याद रखना कि which area is this power plant located, right? So this Hardua Ganj thermal power plant, it is located in Aligarh district. इसकी जो capacity है that is around 665 megawatt. Now you can आपको ये capacity याद करने की जरूरत नहीं है, but you should be knowing कि ये कहाँ पर located है. So this is located in Aligarh district, Hardua Ganj thermal power station, right? Then इसको हम कासिमपुर पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, right? And it is owned by उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड. एंड कोल यहाँ पर हम भारत कोकिंग कोल से इंपोर्ट करते हैं, राइट? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से हम कोयले को इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कोल एज अ रॉ मटेरियल आपको लोकली नहीं मिलता. वी हैव टॉक्ड अबाउट कि इन द गंगा प्लेन्स एंड गंगा यमुना का जो डुआब रीजन है, there you don't find any coal resources. And Aligarh आपका Aligarh lies in middle Doab. So Aligarh में आपको कोई कोयला नहीं मिलता. So coal would be imported. So भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से हम कोल को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे. Then we have Obra thermal power plant, right? This is located in Sonbhadra district, right? यहाँ पर भी जो ऑपरेशन है ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड वो ही करती है, राइट? एंड इसका जो जनरेशन कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 1.2 गीगावाट, 1288 मेगावाट. सो ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ लोकेटेड है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. एंड वी नो कि व्हाट दीज पावर प्लांट्स, दीज एक्चुअली यूटिलाइज वाटर एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. सो यहाँ पर जो पानी है that is sourced from this रिहांद river. रिहांद नदी से यहाँ पर पानी सोर्स किया जाता है, right? Which is being converted into steam. So that is other important point that you can know, right? Then Paricha thermal power plant. Paricha thermal power plant is located in झांसी और इसकी कैपेसिटी जो है
वो 1140 मेगावाट है एंड इट सोर्सेज इट्स वाटर फ्रॉम बेतवा रिवर। ये अपना पानी जो है वो बेतवा नदी से सोर्स करता है। देन वी हैव दिस चंदौसी थर्मल पावर स्टेशन। सो चंदौसी थर्मल पावर स्टेशन जो है वो आपके संबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है एंड इसकी जो कैपेसिटी है करीब 200 मेगावाट की। Then there are certain public-private projects, PPP projects, right, where private players are also involved, and the public player is what? It is government. Both are involved to run any project, right? So ये 3 projects. ललितपुर थर्मल पावर स्टेशन, so we know कि ललितपुर it lies in बुंदेलखंड. So ललितपुर थर्मल पावर स्टेशन, घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन located in Kanpur and Meza thermal power station located in Allahabad. These are the PPP projects. यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट and private players they have jointly laid the foundations of these projects in उत्तर प्रदेश, right? So अगर हम ललितपुर थर्मल पावर स्टेशन की बात करें, so यहाँ पे NTPC and state government they have actually collaborated over this project and it's 4000 megawatt का यहाँ पर project है जो कि located, right? Then we have certain private power thermal stations. So private stations में government का कोई stake नहीं है, government का कोई stake नहीं है, right? These will be entirely formed based on the private capital. प्राइवेट कैपिटल पे ही ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, उससे ही बनाए जाते हैं. सो वन इज दिस रोसा थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन शाहजहांपुर, राइट, एंड अदर वन इज दिस करचाना थर्मल पावर स्टेशन, राइट. सो अगर हम रोजा थर्मल पावर प्लांट की बात करें, इट इज लोकेटेड इन शाहजहांपुर. Initially, it was started by Aditya Birla Group, but later on, it was overtaken by Reliance Group, and it is presently operated by Reliance Group. और इसकी जो installed capacity है, that is around 1200 megawatt. And शाहजहांपुर region, it is also not a locally coal यहाँ नहीं मिलता, right? It lies in the Rohilkhand plains. And here we don't find any coal. So obviously हम coal import करेंगे and coal will be imported from the regions of Jharkhand. So this you should be knowing, right? Then if I talk about what are different power stations under NTPC. NTPC के अंडर में National Thermal Power Corporation, इसके अंडर में कौन कौन से जो coal हैं, power plants हैं, वो located हैं. So one is this Rihand Thermal Power Station. ये लोकेटेड है सोनभद्र में. देन दिस आंवला थर्मल पावर स्टेशन, ये गैस बेस्ड पावर स्टेशन है लोकेटेड इन बरेली. देन फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन रायबरेली. शक्ति नगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड अगेन इन सोनभद्र. औरैया थर्मल पावर स्टेशन, ये आपका गैस बेस्ड थर्मल पावर है. देन दादरी थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन गौतम बुद्ध नगर, राइट. सो दीज आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स व्हिच आर बीइंग managed by NTPC, right? So this is also your Dadri thermal power station, Gautam Buddha Nagar, ये gas based है. These three are gas based actually. Auraiya thermal power station, Dadri thermal power station and Avla thermal power station. ये gas based है, आपको ये पता होना चाहिए, right? You should be knowing this. So this is the question which is being asked by UPPCS. Which of the following NTPC plant is not based on gas? So we know Auraiya is gas based, Avla is gas based, Dadri is gas based. This Tand is not gas based and it is actually under construction. So इस तरीके के questions आ जाते हैं state PCS में, right? And this factual information you should be knowing. That's why I actually covered this. Okay? Then अब हमारा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स दैट इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट वुड बी द हाइड्रो पावर प्लांट्स.
सो नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में हम क्या करते हैं? वी एक्चुअली बिल्ड डैम्स. हम डैम्स बनाते हैं, और डैम्स बनाते हैं, रिजर्वॉयर्स बनाते हैं. वी एक्चुअली ट्राई टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर. जो नेचुरल पानी का फ्लो है, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, वी ट्राई टू रेगुलेट इट, राइट? इस तरीके से डैम बना करके. एंड व्हाट हैपेंस, उससे हम टर्बाइन्स वगैरह को रन करते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्लो ऑफ वाटर, एंड थ्रू दैट वी एक्चुअली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो कोल and petroleum, they are exhaustible resources, but if you talk about hydroelectric power, so that is not exhaustible. इसकी सप्लाई खत्म नहीं होगी, राइट? सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें, जो हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर पावर जनरेशन, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर पावर जनरेशन जो भी हमारी टोटल है, उसका 16% जो है दैट इज बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक, राइट? सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, ये रिन्यूएबल है. रिन्यूएबल है, एज यू कैन सी दिस वाटर सोर्सेस, दीज विल रिमेन, राइट? एंड सो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो इट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट? देन इट इज चीप, इट इज क्लियर, हमें इंपोर्ट नहीं करना. सपोज फॉर पेट्रोलियम वी आर डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्ट्स, राइट? हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है या अदर सेक्टर्स हैं विच इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, डीजल, वो हमारे पास लोकली इतनी सप्लाई नहीं है डिमांड के हिसाब से, राइट? सो वी इम्पोर्ट इट, एंड इम्पोर्ट की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है दैट हैज इंक्रीज्ड, राइट? सो इट इज कॉस्टली फॉर अस. बट इफ वी टॉक अबाउट दीज hydroelectric power plants, these are cheap, right? And so they are environment friendly also, right? You are not burning any fossil fuel. हम किसी fossil fuel को burn नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. And fossil fuel को burn करते हैं तो several greenhouse gases, carbon emissions वगैरह होते हैं, right? So वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं हो रही. So it is what? It is environment friendly. And India की अगर हम बात करें, so India utilizes only small percentage. जितना हमारे पास पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को टैप करने का, जनरेट करने का, उस पोटेंशियल का बहुत ही थोड़ा हिस्सा जो है वो हम अभी यूटिलाइज कर पाए हैं. हम पूरी तरीके से कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं, पूरी तरीके से हमने इस रिसोर्स को यूज अभी तक नहीं किया, राइट? वी आर स्टिल इन द प्रोसेस. And besides that, there are several other concerns also. कुछ concerns भी हैं अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हो. और वो concerns क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, large amount of land is required, large amount of arable land, जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है, वो लैंड जो है रिक्वायर्ड होती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, राइट? सो अगर हम बात करें केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की, यहाँ पे केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, राइट? इट ऑल्सो नीड व्हाट? इट नीड्स लैंड, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट देर आर कंसर्न्स की there would be deforestation in the areas of Kane National Park, right? In the areas of Panna National Park, right? So these are certain concerns. Land would be submerged. Arable land जिसपे agriculture किया जा सकता है, that would be wasted, right? People would have to be rehabilitated. जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उनको rehabilitate करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा. So that would lead to displacement of people. राइट? सो ये कुछ कंसर्न्स हैं. बिसाइड्स दैट आप क्या कर रहे हो? यू आर इंटरफियरिंग विद द नेचुरल फ्लो, जो पानी का नेचुरल बहाव है ऑफ वाटर, यू आर इंटरफियरिंग विद दैट. सो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर से व्हेन यू आर इंटरफियरिंग, सो देयर आर सेवरल इकोलॉजिकल कंसर्न्स, राइट? रिवर में देयर कैन बी सेवरल चेंजेस. जैसे आपने पानी के फ्लो को रोकने की कोशिश करी, सो व्हाट विल हैपन? सिल्टेशन वगैरह रिवर में बढ़ जाता है. सिल्टेशन बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा?
जो रिवर की डेप्थ है दैट माइट डिक्रीज बिकॉज उसके सतह पे, बेस पे, फ्लोर पे ज्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, राइट. सो इट्स डेप्थ विल बी शिफ्टेड, राइट. एंड ऑल्सो जो रिवर की इरोजन की कैपेसिटी है दैट माइट चेंज. So these are some of the challenges hydroelectric power के, right? Then अगर हम बात करें इंडिया में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर का पोटेंशियल कितना है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, so that is around 148.7 gigawatt. This is the potential, right? And we have developed 26.2% of this potential, around 39 gigawatt तक का हमने डेवलपमेंट किया है, right? और अगर हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस के समय पर कितना हमारा जनरेशन कैपेसिटी थी, so it was only 500 megawatt, 508 megawatt. so 1 megawatt, 1 gigawatt तक की भी कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास इंडिपेंडेंस के टाइम पे, राइट. एंड अगर हम बात करें नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, so it was established in 1975 which actually deals with the production of hydroelectricity. Then if we talk about कि बेसिन वाइज मतलब रिवर का जो बेसिन होता है उसके वाइज अगर हम एस्टिमेट करते हैं कि किस रिवर का कितना ज्यादा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है इन 1000 मेगावाट, राइट, 1 गीगावाट में एट 60% लोड फैक्टर. तो सबसे ज्यादा जो आपका किसी नदी का जो पोटेंशियल है दैट इज ब्रह्मपुत्र. मैक्सिमम पोटेंशियल इसी का है 41.7%. बट यहाँ पर टेरेन इस तरीके की है, राइट, जो वहां पर सरफेस है, लैंड है, इस तरीके की है कि हम ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट. ऑल्सो ये सीस्मिक जोन है, सीस्मिक जोन जहां अर्थक्वेक हाई इंटेंसिटी के आते रहते हैं, तो ये सीस्मिक जोन 5 है जहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी हाई रिस्क जोन है. सो इसलिए भी यहाँ पर हम अपना पोटेंशियल अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए. तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल हमें ब्रह्मपुत्र का मिलता है. सेकंड नंबर पे पोटेंशियल हमको इंडस नदी का मिलता है 23.8%, राइट. थर्ड नंबर पे जो पोटेंशियल है वो गंगा नदी का है. सो दिस यू शुड बी रिमेम्बरिंग, यार यू हैव टू मग इट अप, राइट. एंड इफ यू टॉक अबाउट कि हमारे पास दो पेनिनसुलर नदियां हैं, राइट. पेनिनसुलर नदियों में देयर आर सर्टेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. पेनिनसुलर नदियों के अलावा भी कुछ नदियां हैं जो वेस्ट में फ्लो करती हैं, राइट, टुवर्ड्स द अरेबियन सी. अगर हम बात करें माही नदी की, राइट, माही है, साबरमती है. सो दीज आर द रिवर्स विच आर ड्रेनिंग इन दिस अरेबियन सी, राइट. सो कुछ हमारे पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, कुछ हमारे पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. सो अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स दोनों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सो इट वुड बी द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, राइट. सो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10% है जबकि वेस्ट फ्लोइंग का 7% है. सो ये आपको पता होना चाहिए. उसके अलावा सबसे ज्यादा किसका है, सो इट इज ब्रह्मपुत्र, सेकेंड नंबर पे इंडस, थर्ड नंबर पे गंगा, राइट. सो if we talk about ki there are different river systems in India, right, we have this peninsular rivers, then we have these Himalayan rivers, right, and we classify them, हम उनको अलग अलग तरीके से classify करते हैं. we know peninsular rivers, these are non perennial rivers, and Himalayan rivers, these are what, these are perennial rivers. so अब यहाँ पे perennial और non perennial में कुछ अंतर होता है. Perennial rivers are actually those rivers which have flow of water throughout the year. And non-perennial rivers, they actually receive water from rainfall. Rainfall से पानी मिलता है. एंड जब बारिश, जिस मौसम में बारिश नहीं होती तो ये नदियां जो है इनमें पानी का जो वॉल्यूम है बहुत कम हो जाता है, पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है, राइट. दे एक्चुअली ड्राई अप, राइट. सो पेनिनसुलर रिवर्स दे एक्चुअली रिसीव रेनफॉल water from rainfall only, whereas if you talk about the Himalayan rivers, they get water from rainfall. At the same time they also get water from glacial melt, राइट. सो ग्लेशियल मेल्ट से भी इनको पानी मिलता है. अगर आप बात करो यमुना, सो यमुना इट राइजेस फ्रॉम बंदरपंच ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर इन बंदरपंच पीक,
राइट. अगर हम गंगा की बात करें, सो गंगा इट राइजेस फ्रॉम, देयर आर टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा. वी नो कि गंगा जो है भागीरथी, जिसका सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर है, राइट. सो व्हाट हैपेंस, जब बारिश का मौसम नहीं भी होगा तभी भी these rivers would be receiving water. So there are certain factors. Northern rivers उनका ज्यादा पोटेंशियल क्यों होता है, क्योंकि उनमें साल भर फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन रहता है. These are perennial rivers. There is high velocity of water flow, right? High velocity of water flow because जो rivers हैं, जो northern rivers हैं, these are emerging from Himalayas. हिमालय से इमर्ज हो रही है, यानी कि हिमालय दे हैव हाई एल्टीट्यूड्स, राइट. जो हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज 8,8848 meters, Mount Everest, right? So most of the Himalayan peaks, these are in the range of 7,000, 5,000, 7,000 meters high, right? So they are so high, and as a result, because of this sharp elevation, rivers have huge energy. Steep slope and dissected terrain. That is why northern rivers, they have more potential, right? Northern rivers have more potential. And what are those rivers? Indus, Ganga, Brahmaputra. फिर गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज की अलग अलग, इंडस की अलग अलग ट्रिब्यूटरी हैं. गंगा की बात करें तो गंडक है, कोसी है, रामगंगा, यमुना, घाघरा, काली, राइट, शारदा. These are different tributaries and they have their, इनकी जो सोर्स है वो हमें हिमालयन ग्लेशियर्स में मिलते हैं, एंड सो दे हैव ग्रेटर पोटेंशियल, राइट. और अगर हम पेनिनसुलर नदियों की बात करें, दे आर कंपैरेटिवली, अगर आप इनको नॉर्दर्न नदियों से कंपेयर करते हैं तो दीज आर पुअर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, राइट. दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर इरेटिक है. इरेटिक इसलिए है क्योंकि रेनफॉल इंडिया में मॉनसून रेनफॉल होती है, राइट. मेजरली 85% ऑफ जो रेनफॉल है वो हमें 4 महीनों में ही मिलती है, 4 months of summer. And monsoons, they are themselves very irregular. Monsoons are very irregular. There are several phenomena working because of which monsoon हर साल एक जैसा नहीं होता, इसलिए flow of water erratic है, right? स्टोरेज ऑफ वाटर बहुत जरूरी है यहाँ पर, रिजर्वॉयर्स बनाना ताकि हम पानी के फ्लो को रेगुलेट कर सके, राइट. सो बल्क पोटेंशियल यहाँ पे हमें पहाड़ी इलाकों में मिलता है, हिली एरियाज में मिलता है. देन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की, सो उत्तर प्रदेश में हमें पता है कोल पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं मिलते. जैसे कि जो हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स गुजरात है, राइट. देन इधर कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन है आंध्र प्रदेश में, राइट. सो देयर यू फाइंड कि कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज मिलते हैं. असम रीजन में मिलता है, राजस्थान में मिलते हैं, बट कोल मिलता है हमें झारखंड, छत्तीसगढ़ में. These are the states where you find such resources. But उत्तर प्रदेश में आपको ज्यादा अमाउंट में कोयला नहीं मिलता, पेट्रोलियम तो मिलता ही नहीं, right? So because of which it necessitated the development of hydropower in Uttar Pradesh, right? And Uttar Pradesh, we know there are several rivers, कई सारी नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश को ड्रेन करती हैं. हमें पता है गंगा की ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती हैं, राइट. सो देयर आर मेनी रिवर्स व्हिच आर ड्रेनिंग इन यूपी, एंड बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल काफी ज्यादा है. सो अगर हम एक एक करके बात करें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, सो सबसे पहले रिहांद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, राइट. रिहांद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, it's located in सोनभद्र district and it's a multi-purpose project. अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि इस तरीके के जो हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको हम फ्लड कंट्रोल करने में भी यूज करते हैं, right. Whenever there would be higher amount of rainfall, we'll try to control the amount of waters that are being released. तो उसको हम फ्लड कंट्रोल में यूज करते हैं. जब सूखा पड़ता है, कम बारिश होती है, तो जो हमने पानी स्टोर किया होता है उसको हम कैनल्स वगैरह में भेज के ड्राउट जैसी कंडीशन से डील करने की कोशिश करते हैं.
Then we also try to supply water for drinking water purposes, right? We store water for irrigation purposes. At the same time we are generating power from such projects. So iska multi-purpose power project का मतलब यही होता है, right? So location इसकी सोनभद्र district है and it is the Rihand on Rihand river, right? So reservoir यहाँ पर जो बनाया गया है, reservoir to store water. This is the largest man-made lake in India, artificially being made. So Govind Ballabh Pant Sagar Dam reservoir that is being made, right? और इसकी जो capacity है that is around 300 megawatt, right? Then we have this Sharda hydroelectric power project. The Sharda hydroelectric project, this is located on Sharda river. Sharda river, it is the tributary of Ganga river. Right? And Sharda river, it is this dam, this project was built in 1920s, right, by the British government, right? And British government ने एक treaty की थी, महाकाल treaty, महाकाल संधि with Nepal, that tried to regulate the diversion of water, and this treaty is still in force. And यहाँ पर जो पानी है इसका रेगुलेट किया जाता है for the purpose of irrigation and power generation. So इसका फायदा यूपी में कौन कौन से जिलों को मिलता है? बेसिकली जो तराई रीजन के या फिर प्लेन रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको फायदा मिलता है. सो यू टॉक अबाउट पीलीभीत, बरेली, शाहजहानपुर, हरदोई, खीरी, सीतापुर एंड लखनऊ. They get electricity from this particular project. Then we have this Ganga hydroelectric power projects. So Ganga hydroelectric project गंगा नदी पे है, राइट? इट लाइज इन द अपर डोआब रीजन. डोआब रीजन जो गंगा यमुना नदी के बीच का जो रीजन होता है उसको हम डोआब कहते हैं, राइट? सो दिस पर्टिकुलर, दिस इज गंगा, दिस इज यमुना. सो बीच में वी डिवाइड लैंड. सो दिस इज द अपर डोआब, दिस इज मिडिल डोआब, दिस इज लोअर डोआब. सो अपर डोआब में हमारे पास सहारनपुर, संबल, राइट, बुलंदशहर, ये सारे, मेरठ, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, राइट? सो दिस एक्चुअली बेनिफिट्स द एरियाज ऑफ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एंड बुलंदशहर. और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज अराउंड 13.7 मेगावाट. Then we have this Matatila hydroelectric power project. So this is located in Lalitpur district of Bundelkhand. So बुंदेलखंड पठारी इलाकों में ये लोकेटेड है, ललितपुर जिले में. एंड कौन सी नदी पर ये कंस्ट्रक्टेड है? इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन बेतवा रिवर, राइट? एंड इट एक्चुअली बुंदेलखंड एरिया दैट इज द बॉर्डर ऑफ एमपी यूपी. सो ये जो पानी है फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूपी एंड एमपी को प्रोवाइड करता है. और इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 30.6 मेगावाट. Then there are several other projects like Shitla hydroelectric project है that is located in Jhansi. उसके अलावा ओबरा hydroelectric power plant है that is located on Rihand river, right, and in Sonbhadra district. Then we have this Paricha hydroelectric power project. This is located in Jhansi, right, on Betwa river. So Jhansi again, it is part of Bundelkhand area, right? And उसके अलावा we have this Babbal and Belka hydroelectric project located in Saharanpur, right? Then there are certain combined projects. Combined project का मतलब है किसी एक गवर्नमेंट की नहीं, different governments, 2 or more governments, they actually are contributing to this project. So we have this Gandak hydroelectric project. अब Gandak we know as we move towards east. So there are different rivers which are joining Ganga. So Gandak, Budi Gandak, right? Then we have this Kosi, which is called Sorrow of Bihar. वो join करती है. So Gandak actually lies on the borders of Bihar, right? So ये बिहार एंड यूपी गवर्नमेंट ने combined project जो है वो initiate किया, right? Then we have this Tihari hydroelectric project.
दिस इज बेसिकली उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल केंद्र सरकार, इन तीनों का ये कंबाइंड हाइड्रो प्रोजेक्ट है, राइट. So after hydro projects, we discuss the nuclear power. So nuclear power is basically dependent upon the nuclear resources. Nuclear resources as fuel, so that nuclear fission reaction can be done, right? And based on that, we actually produce power. राइट. सो यहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूल्स है, न्यूक्लियर फ्यूल्स वो क्या है? वी यूज यूरेनियम, वी यूज थोरियम, राइट. बट अगर हम इंडिया में बात करें, हमें यूरेनियम थोरियम दोनों के ही रिसोर्सेज मिलते हैं. थोरियम के रिसोर्सेज ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू यूरेनियम, बट थोरियम को यूटिलाइज करने की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं, इसलिए हम थोरियम को उतना यूटिलाइज नहीं कर पाते, राइट. वी यूटिलाइज यूरेनियम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर, राइट. एंड यूरेनियम की अगर बात करें तो यूरेनियम जो है इट इज अ न्यूक्लियर फिजन में हम इसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल. एंड देयर आर इसके अलग अलग आइसोटोप्स हैं जो कि हमें मिलते हैं. सो वी हैव यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, यूरेनियम 238. यूरेनियम 238 आइसोटोप जो है ये मोस्ट अबंडेंट है, इंडिया में ये सबसे ज्यादा मिलता है. बट इस रिसोर्स का एक जो यूरेनियम 238 है इसका एक ड्रॉबैक है कि ये फिसाइल नहीं, दिस इज नॉट फिसाइल. नॉट फिसाइल का मतलब ये होता है कि ये चेन रिएक्शन नहीं करवा पाता, चेन रिएक्शन नहीं हो सकती इसमें इनिशिएट, राइट. सो हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू एक्चुअली हम सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी से इसमें यूरेनियम के को एनरिच करते हैं, राइट. और यूरेनियम को एनरिच करके यूरेनियम 235 लेवल तक लेके जाते हैं, राइट. एंड देन वी कैन एक्चुअली यूज इट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, राइट. सो दिस यू शुड बी नोइंग. एंड यूरेनियम के जो रिजर्व्स है वो हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? यूरेनियम के रिजर्व्स हमको झारखंड में मिलते हैं, हमको आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं. एंड सम ऑफ यूरेनियम इज ऑल्सो फाउंड इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, बुंदेलखंड एरिया में, राइट. सो यहाँ पे हमें यूरेनियम के रिसोर्सेज मिलते हैं. थोरियम के रिसोर्सेज हमको मोस्टली मोनाजाइट सैंड के फॉर्म में केरला में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, राइट. सो न्यूक्लियर पावर की अगर हम बात करें तो टोटल पावर जनरेशन में करीब 3% योगदान जो है वो न्यूक्लियर पावर का है. एंड इंडिया में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, बट दैट पोटेंशियल इज स्टिल टू बी हार्नेस्ड. अभी हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किए, right. And what are the factors which are responsible for the nuclear power development? Sophisticated technology which India has attained, India has imported, right. Now India has attained for the uranium, thorium based nuclear power plants के लिए still अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, right. And these require water resources. वाटर रिसोर्सेज को यहाँ पर एज मॉडरेटर्स काफी ज्यादा यूज होता है पानी वाटर रिसोर्सेज का. सो मोस्ट ऑफ दीज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दीज आर लोकेटेड नियर द वाटर सोर्सेज, राइट. एंड अगर हम इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की बात करें तो जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है दैट वाज इनिशिएटेड इन 1940s में. इसको इनिशिएट किया गया था जब टाटा एटॉमिक रिसर्च कमीशन 1948 में बनाई गई थी, राइट. लेटर Atomic Energy Institution, Trombay lies in Maharashtra. So Trombay में 1954 में Atomic Energy Institution जो है वो डेवलप किया गया. Later it was renamed in 1967 as BARC, Bhabha Atomic Research Center, right? Then अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया का पहला पावर स्टेशन कौन सा था? So it is तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन which is located in Mumbai. ये 1969 में शुरू किया गया था. इसके बाद रावत भाटा
न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि राजस्थान में स्थित है, एंड देन कलपक्कम which is located in Tamil Nadu, right? So India में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है in operation at different sites, जिसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करीब 6.7 गीगावाट्स है, right? So India में you can see there are several plants. Narora it lies in UP in Bulandshahr, right? This is operational. Rajasthan में we have Rawatbhata, right? Then Kakrapar in Gujarat we have, it is operational. Tarapur जो कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, located in Maharashtra. Kega located in Karnataka, right? Then Kalpakkam is located in Tamil Nadu. Kudankulam located in Tamil Nadu. These are operational. इसके अलावा at several places there are जो projects being constructed at, as you can see here, Chutka. Then Mumbai में, there in Gujarat, Meethi Virdi, right? Jaitapur in Maharashtra, Kovada in this region, right? So these are being developed. These are the newer sites which are yet to come up. And this is a map where you can see कि ये seismic zone का map है. This is seismic zone. This is the red zone, zone 5. So zone 5, this is the most prone zone, right? And ये जो green वाला है, that is the zone 4. This is zone 4. So जो नरोरा वाला plant है, that is located in the zone 4, right? Zone 4 में located है, which is seismic zone. और seismic zone में भी high risk पे रहता है ये वाला zone, right? So this you should be knowing. So अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन यूपी में, so we have this नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन located in, when it was formed 2000 में बनाया गया था, and it is the first ISO certified. ISO is International Standard Organization. ये पहला ISO certified atomic power plant है in Asia. It has also received Golden Peacock Award from World Environment Foundation. लोकेशन इसकी नरोरा बुलंदशहर में है, राइट? कमर्शियल ऑपरेशन यहाँ पर 1991 में शुरू हो गया था, मतलब 2000 में इसको ये स्टैंडर्ड ISO सर्टिफिकेशन मिला था. It started its operation in 1991 itself, right? And it lies in zone 4 of seismic zone, right? Then next is we talk about governance in case of the power generation. Governance structure कैसा है उत्तर प्रदेश में? So there are several different bodies. अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में for the conventional resources. Conventional resources are actually the coal, right? Petroleum and other resources are the conventional ones. So we have this Uttar Pradesh State Electric Council. उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक काउंसिल कब बनाई गई थी? 1959 में बनाई गई थी, राइट? देन वी हैव उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन एक्ट. सो ये 1998 में बनाई गई थी एंड इट एक्चुअली रेगुलेट्स द टेरिफ. क्या टेरिफ होगा, क्या चार्जेस होंगे जो भी इलेक्ट्रिसिटी है कंज्यूमर्स को दी जाती है या जनरेटर्स को दी जाती है, इंडस्ट्रीज को दी जाती है, तो क्या अलग अलग टैरिफ्स होंगे विद इन द जो सेल है ऑफ द पावर विद इन द स्टेट. सो उसके लिए विद इन द उत्तर प्रदेश जो टैरिफ स्ट्रक्चर्स हैं दैट वुड बी डिसाइडेड बाय दिस बॉडी, राइट? एंड ये बॉडी 1998 में बनाई गई. देन देयर आर सेवरल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स कहते हैं इनको. तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है इलाहाबाद में, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड है मेरठ में, राइट? देन दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन PCS. उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक काउंसिल कब बनी थी? सो इट वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1959. सो इस तरीके के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यू हैव टू रिमेंबर, राइट, फॉर योर एग्जाम्स. देन उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक रिफॉर्म एक्ट लेके आया गया था. स्टेट इलेक्ट्रिक रिफॉर्म एक्ट व्हेन इट वाज ब्रॉट इन 1999. और यहाँ पर पावर रिलेटेड जो पावर जनरेशन रिलेटेड काम है उनको 3 कंपनियों में डिवाइड किया गया था. एक है उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे, राइट? देन वी हैव उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को देखेंगे. एंड उसके अलावा वी हैव उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ये सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है. ओके, सो वी हैव कवर्ड द कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में हमने बात कर लिया, राइट. देन द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. सो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास है, टाइडल है, जियोथर्मल है एंड एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल. सो टाइडल एनर्जी उत्तर प्रदेश में नहीं होगी क्योंकि टाइडल एनर्जी टाइड्स का हम यूटिलाइज करते हैं, टाइड्स को यूटिलाइज करते हैं. टाइड्स आर व्हाट? दीज वुड बी फाउंड इन द कोस्टल एरियाज. समुद्री इलाकों पे जो समुद्री तट है वहां पर टाइड्स आएंगे. उत्तर प्रदेश क्या है? वी नो कि उत्तर प्रदेश लैंड लॉक्ड स्टेट है. इट इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट. तो उत्तर प्रदेश में हमें टाइड्स देखने को नहीं मिलती, तो टाइडल एनर्जी रिसोर्सेज भी यहाँ पे नहीं अवेलेबल होंगे, राइट. जियोथर्मल एनर्जी इज द एनर्जी विच वी आर यूटिलाइजिंग, एनर्जी कमिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम विद इन द अर्थ सरफेस, राइट. सो उसको कैसे हम टैप करते हैं, that is actually the geothermal energy. Then we have the wind energy, sun energy. So एक एक करके हम इसकी बात करते हैं, right. So if we talk about the non-conventional energy resources, we already know कि इनका क्या features हैं. These are abundant, these are renewable, pollution free हैं and they can solve twin problems. एक तो energy supply in decentralized manner. Decentralized manner का यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे कि आप बात करो solar PV cells. So solar PV cells, these are रेडिली अवेलेबल. आप इनको अपनी छत पे लगा करके अपना एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट. सो दीज आर रेडिली अवेलेबल. सो यहाँ पर आप अपने लिए खुद प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट. हम सोलर पंप्स को किसानों में बांट सकते हैं, सोलर पंप्स को. सो उससे दे कैन कट डाउन देयर डीजल रिक्वायरमेंट एंड दे कैन एक्चुअली विड्रॉ ग्राउंड वाटर, राइट. सो दीज आर मोर डिसेंट्रलाइज्ड. यहाँ पर आपको कोई सेंट्रल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है. अगर हम बात करें सोलर हीटर्स की या फिर हम बात करें सोलर लैंप्स की, सो दीज आर व्हाट, आप इनको, आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं भी है, देन ऑल्सो यू कैन चार्ज योर सोलर लैंप्स. सो व्हाट इज द केस हियर? यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में आपके लिए ये सुविधा अवेलेबल है, राइट. Then there are also cleaner sources of energy. So अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम की, तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम जब हमारा डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, तब हमारा ये प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था, राइट. देन वी हैड दिस बॉडी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IRDA. It was established in 1987 and later हमारे पास ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992, राइट. सो इंडिया का अगर हम बात करें जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है उसका पोटेंशियल, सो 31% जो पोटेंशियल है दैट कम्स फ्रॉम सोलर एनर्जी, राइट. 30% एनर्जी जो है वो ओशन थर्मल से आता है. ओशन थर्मल इज बेसिकली जो ओशन में जो वाटर होता है, सो वाटर में अलग अलग लेयर्स जो हैं अलग अलग तरीके से हीटेड अप होती हैं. जो टॉप लेयर्स होती हैं दे आर मोर हॉटर कंपेयर टू द लेयर्स विच लाई फर्दर एट डेप्थ्स, राइट. तो यहाँ पर ऊपर की लेयर्स गर्म होती हैं, नीचे की लेयर्स ठंडी होती हैं. सो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, दिस टेम्परेचर डिफरेंस, उसको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, राइट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पावर. So 30% energy potential जो है that lies from the ocean thermal, right. Then 26% energy comes from biofuel, right, where you are using bioorganisms को utilize करते हैं हम, right. Hydro organic substances का utilization करते हैं. And 13% comes from wind, right. So अगर हम बात करें कुछ फैक्चुअल चीजों की, तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन का जो प्रोग्राम है दैट इज 175 गीगावाट टिल 2022. ये इंडियन गवर्नमेंट का ही टारगेट है. सो दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन प्रोग्राम. देन वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दैट इज अराउंड 23.3%. जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारी दैट इज 368.98 गीगावाट.
सो इस पोटेंशियल का, इस टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी कितना कंट्रीब्यूट करती है इसमें, दैट इज 23.3%. तो टोटल कैपेसिटी हमारे पास 368 गीगावाट है. इसमें इसका 23% जो है दैट कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस. रिन्यूएबल में सोलर, विंड, ये सब आता है, राइट. तो सोलर कैपेसिटी की अगर हम बात करें, सो पिछले कुछ सालों में, करीब लास्ट 5.5 इयर्स में, वी हैव इंक्रीज्ड इट फ्रॉम ओनली 2.6 गीगावाट से हम 24 गीगावाट तक पहुंच गए. सो वी हैव इंक्रीज्ड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. कैपेसिटी हमारी काफी ज्यादा डेवलप हुई है, राइट. एंड इंडिया इज नाउ एट 5th ग्लोबल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी. जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, ग्लोबली हम 5th रैंक पर आते हैं, राइट. वी हैव रिसेंटली सरपास्ड इटली, राइट. एंड सोलर पावर टेरिफ्स को भी काफी ज्यादा रिड्यूस किया गया है टू द ट्यून ऑफ 75%, ताकि जो कंपटीशन है फ्रॉम द कन्वेंशनल सोर्सेस, कंपटीशन फ्रॉम कोल बेस्ड सोर्सेस, वो थोड़ा फेवर में आ सके, रिन्यूएबल के लोग रिन्यूएबल को ज्यादा यूज कर सके, राइट. बिकॉज कोल इट्स अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी. तो हमें कैसे रिन्यूएबल्स को उसके कंपटीशन में लाना है, उसके लिए इसके टैरिफ्स में काफी ज्यादा रिडक्शन किया गया है, राइट. देन वी ऑल्सो हैव दिस सोलर पार्क स्कीम. सो सोलर पार्क स्कीम को भी डबल किया गया है. टारगेट यहाँ पे 20 गीगावाट से 40 गीगावाट तक हमें सोलर पार्क स्कीम से जनरेट करना है, राइट. एंड इन सोलर पार्क स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, इट प्रोवाइड्स लैंड विद ऑल द क्लियरेंसेस so that solar parks could be developed over large contiguous area, right. So अगर हम इंडिया में बात करें सोलर एनर्जी की, तो इंडिया क्या है, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री. अगर हम बात करें, दिस इज योर इक्वेटर 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ साउथ. सो इंडिया इस रीजन में लाई करता है, राइट. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन. इसके आगे हमारे पास आता है मिड लैटिट्यूड, टेम्परेट एरियाज, एंड देन वी हैव दीज पोलर एरियाज, राइट. सो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है. एंड ट्रॉपिकल कंट्री इट रिसीव्स मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट, ज्यादा सनलाइट रिसीव करेंगे. तो अगर डेली एवरेज अगर हम सोलर एनर्जी इंसिडेंट का देखें, तो 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर इतना हमारा सोलर एनर्जी इंसिडेंट है. सो उस सोलर एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी या फिर फोटोवोल्टाइक एप्लीकेशंस, राइट. और इंडिया की अगर हम बात करें, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, दैट इज अराउंड 30 गीगावाट, राइट. और हमारा टारगेट है कि हम 100 गीगावाट को अचीव कर सकें, राइट. सो वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सोलर एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, हम फोटोवोल्टाइक के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. सो कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी टू थर्मल एनर्जी, यहाँ पे हम सोलर वाटर हीटर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, सोलर एयर हीटर्स, सोलर कुकर, दे एक्चुअली वर्क ऑन सोलर थर्मल एनर्जी. यहाँ पे हम हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ. सो हियर यू कैन सी दिस इज सन, द लाइट कमिंग फ्रॉम सन. यहाँ पर ये इस तरीके से कंसंट्रेटर्स लगाए जाते हैं, दीज आर मिरर्स. सो इन पे लाइट पड़ती है, दिस लाइट फॉल्स ऑन देम, एंड मिरर्स से लाइट रिफ्लेक्ट होती है एंड दीज आर द ट्यूब्स, राइट, जिनमें कुछ फ्लूइड भरा होता है, राइट. एंड व्हेन दिस लाइट इट एक्चुअली फॉल्स ऑन देम, सो ये फ्लूइड क्या होता है, इट गेट्स हीटेड अप. तो ये फ्लूइड हीट होता है, राइट. एंड उसके बाद यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होती है, वाटर वगैरह होता है, एंड स्टीम से हम टरबाइन रन करते हैं, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. सो ये सोलर थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी इस पे काम करती है. देन वी हैव द सोलर फोटोवोल्टाइक सेल. सो हमने पढ़ा है कि लाइट का डुअल नेचर होता है, राइट. लाइट का डुअल नेचर होता है. लाइट ऑल्सो हैज दीज फोटोन पार्टिकल्स, राइट, पैकेट्स ऑफ एनर्जी. इनको हम यूटिलाइज करते हैं, राइट, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें. So conversion of sunlight into electricity without moving any parts and without causing pollution, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम दिस सोलर फोटोवोल्टाइक. तो यहाँ पे हम फोटॉन्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, राइट.
सो सन का अगर हम हीट यूटिलाइज कर रहे हैं, देन वी वुड बी ट्रैपिंग हीट, कन्वर्टिंग इट इनटू हॉट वाटर एंड फिर उसको यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। और अगर हम डायरेक्ट लाइट का यूटिलाइज करते हैं, लाइट इट हैज फोटोन पार्टिकल्स, सो ये हमारा पीवी सेल्स है, इस पे जब लाइट पड़ती है, सो दीज पार्टिकल्स इट एक्चुअली मूव, राइट, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं हम फ्रॉम दिस light, from utilizing the light coming from the sun, not the heat, right? So we have this Jawaharlal Nehru Solar Mission. It was launched in 2010 as part of your National Action Plan on Climate Change. और इसका जो टारगेट है कि हमें 100 गीगावाट और सोलर कैपेसिटी डेवलप करनी है बाय 2022, और हमने करीब 28 to 30 गीगावाट डेवलप की है। इसमें भी जो 100 गीगावाट का हमारे पास टारगेट है, उसमें से 40 गीगावाट हमको रूफटॉप से लाना है, राइट, जो लोगों की छत है उनके ऊपर लगा दो सोलर पैनल्स, उससे हमें बनानी है, राइट। उसके अलावा लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड, जो ग्रिड कनेक्टेड होंगे दैट वुड बी 60 गीगावाट। सो यू कैन सी दिस इज हियर इन दिस केस दीज प्लांट्स वुड बी ग्रिड कनेक्टेड, ये ग्रिड कनेक्टेड है, ग्रिड से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सो दैट वुड बी 60 गीगावाट्स, राइट। और उसके अलावा हमें 15 मिलियन स्क्वायर मीटर्स ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर एरिया अचीव करना था, राइट, एंड 20 मिलियन बाय 2022। उसके अलावा हमें 20 मिलियन सोलर लाइटिंग सिस्टम्स लगाने इन रूरल एरिया बाय 2022। दीज आर द टारगेट्स अंडर योर जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जो कि पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि लॉन्च किया गया था 2008 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिटेल। Then there are several schemes by the government जो कि सोलर पावर को डेवलप करने के लिए इनिशिएट की गई है, राइट। सो वी हैव दिस सोलर पार्क स्कीम, देन वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम इज देयर, सेंट्रल CPSU स्कीम, राइट। उसके अलावा देयर आर डिफेंस स्कीम, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम, सूर्य मित्र स्कीम, ये कुछ अलग अलग स्कीम्स है, राइट। Then we have also International Solar Alliance. So International Solar Alliance, it's an initiative by Prime Minister of India, Narendra Modi, and the President of France in 2015 at Paris, right? और इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को स्केल अप करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक 5 एकड़ ऑफ लैंड जो है दैट हैज बीन डेडिकेटेड टू ISA, राइट, इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का कैंपस इन गुरुग्राम। सो ISA के जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट आर लोकेटेड इन गुरुग्राम, दिस यू शुड बी रिमेम्बरिंग, राइट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नाउ टॉकिंग अबाउट द गवर्नेंस ऑफ द सोलर एनर्जी, सो सोलर एनर्जी का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है NICE in Gurugram, that is actually regulating that, and it is an autonomous institute under Ministry of New and Renewable Energy, which was itself formed in MNRE 1992 में। So इसका मैंडेट क्या है, क्या इसका काम क्या है? It actually initiates R&D कि किस तरीके से हम चीप PV सेल्स बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उस तरीके की R&D वगैरह करते हैं यहाँ पे। देन सोलर कंपोनेंट की टेस्टिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट, सोलर प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस, ये सारी बनाया जा सके। सो ये सारा काम जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी करती है, राइट। एंड अगर हम बात करें कि किन स्टेट्स वाइज जो पोटेंशियल है, सो ऑल्दो पूरा ही इंडिया ट्रॉपिकल नेशन है, ट्रॉपिकल एरियाज में लाई करता है, पर सबसे ज्यादा जो पावर इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी का जो स्टेट है विद हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी, दैट इज एक्चुअली योर कर्नाटका। So this is an important point you should remember, right? Then अगर हम उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी की बात करें, so we have this solar power policy. सोलर पावर पॉलिसी कब लाई गई थी? ये 2013 में लाई गई थी, बट ये इफेक्ट में कब आई है? इफेक्ट में 2017 में आई है, राइट। पॉलिसी ऑपरेशनल कब हुई है? तो ये ऑपरेशनल 2017 में हुई है, राइट। और यहाँ पे टारगेट्स क्या है? टारगेट्स हैं कि गवर्नमेंट को 10.7 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो डेवलप करना है, पोटेंशियल डेवलप करना है, राइट। सो अगर हम उत्तर प्रदेश में अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें 2020 में, तो इट इज ओनली
1095.1 मेगावाट, यानी कि 1 गीगावाट ही है अभी। और टारगेट क्या है हमारा सोलर पावर पॉलिसी 2017 में जो ऑपरेशनल हुई है उसमें है कि हमने 10.7 गीगावाट तक अपना पोटेंशियल बनाना है, बट अभी है कितना, इट्स ओनली 1 गीगावाट। एंड सबसे ज्यादा किस स्टेट का है, सो मैक्सिमम इज कर्नाटका, देन वी हैव राजस्थान आल्सो व्हिच इज वन ऑफ द लीडिंग producers of solar energy, right? Then there are several initiatives of the state government. National Solar Mission है जो कि 2010 में लॉन्च किया गया था. Then solar photovoltaic pumps would be distributed. उसके अलावा आदित्य सोलर शॉप प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, we would be increasing access to the availability and services of new and renewable energy system. So कैसे उसका एक्सेस बढ़ाना है, उसके लिए ये आदित्य सोलर शॉप प्रोजेक्ट है. फिर उसके बाद सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम है, सोलर सिटी प्रोग्राम है, जिसमें कि हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉम्पोजिशन है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो हमें इंक्रीज करना होगा. सोलर लाइट्स जो है वो हम स्ट्रीट्स पे लगाएंगे ताकि जो है हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सके. एंड नेक्स्ट इज द विंड एनर्जी. विंड एनर्जी इट इज लेड बाय इंडिजिनस विंड पावर इंडस्ट्री. इंडिया की बात करें तो हाँ, इंडिया 4th लार्जेस्ट विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इन द वर्ल्ड, राइट. लार्जेस्ट अगर किसी देश में है तो लार्जेस्ट वुड बी यूएसए. यूएसए हैज लार्जेस्ट विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, राइट. इंडिया की बात करें सो इंडिया हैज 4th हाईएस्ट कैपेसिटी, करीब 35.6 गीगावाट जनरेट करने की हमारे पास है एज ऑफ मार्च 2019, राइट. सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इस तरीके की विंड मिल्स होती है, विंड फार्म्स होते हैं विच आर डेवलप्ड एंड विच एक्चुअली यूटिलाइज द फ्लो ऑफ एयर ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके. सो यू कैन सी दीज आर द विंड फ्लो पास दीज टर्बाइंस. सो यहाँ पे इन ब्लेड्स को एक्चुअली जब हवा आती है सो इट एक्चुअली ये ब्लेड्स मूव करते हैं, राइट. ब्लेड्स मूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि टर्बाइन वगैरह लगी होती है, दे ऑल्सो रोटेट, राइट. सो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, टर्बाइंस फिर लेटर ऑन दे मूव एंड उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं, राइट. सो अगर हम बात करें टोटल हमारा टारगेट कितना है विंड एनर्जी में, 60 गीगावाट टारगेट है एंड वी हैव डेवलप्ड अराउंड 36 गीगावाट. सो दिस यू शुड बी नोइंग, राइट. एंड गवर्नमेंट विंड एनर्जी को भी काफी ज्यादा सपोर्ट करती है. काफी सपोर्ट कैसे करती है, वी प्रोवाइड फिस्कल एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, राइट. कंसेशनल कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन देते हैं. जनरेशन अगर आप करते हो तो उसके लिए काफी सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है, राइट. अगर आप बाहर से मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो तो उसमें आपको कस्टम ड्यूटीज में एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं. इंटर स्टेट अगर आप विंड पावर को सेल कर रहे हो सो क्या वहां पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप विंड पावर को सेल कर रहे हो तो टैरिफ्स लगते हैं एंड वो उस टैरिफ्स में भी छूट दी जाती है, राइट. So interstate transmission charges and losses they have been waived off for wind and solar projects ताकि they can compete with coal based resources, right. They can compete with coal, natural gas, these kind of resources. So अगर इंडिया में बात करें पोटेंशियल कितना है तो करीब 302 गीगावाट तक का विंड एनर्जी डेवलप करने का हमारे पास पोटेंशियल है at 100 मीटर अबव ग्राउंड लेवल एंड मोस्टली 7 स्टेट्स में ये पोटेंशियल लाई करता है which are mostly the coastal states, right. Coastal state में हवाएं चलती रहती हैं. We have land and sea breezes. Land and sea breezes क्यों चलती है, क्योंकि समुद्र और लैंड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है. पानी जल्दी ठंडा और गर्म नहीं होता है, लैंड जल्दी ठंडी और गर्म हो जाती है. सो दिन के टाइम में लैंड ज्यादा गर्म होती है कंपेयर टू पानी, राइट. सो इसलिए क्या होता है कि पानी समुद्र से हवाएं लैंड की तरफ चलती है क्योंकि लो प्रेशर लैंड पे होता है. और रात के टाइम पे क्या होता है कि लैंड ठंडी ज्यादा हो जाती है तो हवाएं जो है वो लैंड से समुद्र की तरफ चलती हैं, राइट. क्योंकि लो प्रेशर समुद्र पे होता है तो उसको हम लैंड एंड सी ब्रीजेस कहते हैं एंड दीज आर मोर इन योर कोस्टल एरिया. सो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दीज आर द विंड पोटेंशियल इन 7 स्टेट्स में सबसे ज्यादा है, राइट.
So if we talk about the governance structure in case of wind energy, so National Institute for Wind Energy, जैसे हमने सोलर एनर्जी के लिए देखा था, we had this National Institute of Solar Energy in Gurugram. So उसी तरीके से हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है जो कि चेन्नई में established है, right? In 1988 it was established. This is also an autonomous institute और इसका भी जो मैंडेट है वो सेम है जैसा कि नाइस का था, राइट? हमें R&D करनी है, राइट? और बाकी सारे जो काम है डेवलपमेंट ऑफ विंड एनर्जी उसको प्रमोट करना है. सो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. और अगर हम यूपी में विंड एनर्जी पॉलिसी की बात करें तो विंड एनर्जी पॉलिसी यूपी में 2015 की है, राइट? और इसमें यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रमोट द जनरेशन. हमें कैसे विंड एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है, हार्नेस, हमें विंड एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा करना है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है, राइट? देन हम उसको हार्नेस कैसे करें उसके लिए हमें लोग चाहिए होंगे, राइट? इन दोज विंड मिल्स. सो उसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डेवलप करनी है. सो लोकल मैन्युफैक्चरिंग, अब आप की जो विंड मिल्स है उनमें कई सारी चीजों का यूटिलाइजेशन होता है, टरबाइन्स हैं, विंड ब्लेड्स हैं और बहुत सारी चीजें होती है. सो उसको हम बाहर से इंपोर्ट ना करके लोकली मैन्युफैक्चर करें, राइट? सो ये हमारी विंड जो जनरेशन पॉलिसी है, विंड एनर्जी पॉलिसी है उत्तर प्रदेश सरकार की, राइट? देन देयर आर सेवरल विंड मॉनिटरिंग स्टेशंस इन यूपी जो कि सेंटर फॉर विंड एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी सीवेट चलाता है. सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी के अंडर में देयर आर सेवरल विंड मॉनिटरिंग स्टेशंस और उत्तर प्रदेश में ये 4 जगहों पर लोकेटेड है, पीलीभीत, सीतापुर, शाहजहांपुर एंड लखीमपुर खीरी. These are the areas where these wind monitoring stations are located, right? Then अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश हैज प्रोडक्शन कैपेसिटी, पोटेंशियल उत्तर प्रदेश के पास करीब 1260 मेगावाट का है, राइट? एंड उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो इन सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज से डील करती है, राइट? बट अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, सो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 0 मेगावाट है. अभी तक हमने कोई इस तरीके के विंड फार्म्स उत्तर प्रदेश में डेवलप नहीं किए, राइट? सो सबसे ज्यादा अगर आप बात करो विंड एनर्जी कैपेसिटी की, सो तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी, उसके बाद वी हैव गुजरात, राइट? एंड देन वी हैव स्टेट्स लाइक राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. दीज आर सम ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स. उत्तर प्रदेश के पास 0 मेगावाट है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, बट पोटेंशियल है करीब 1260 मेगावाट्स का, राइट? सो नेक्स्ट इज द बायोमास एनर्जी. सो बायोमास एनर्जी में हम एक्चुअली क्या करते हैं, वी यूज द बायोमास एंड बायोमास इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम प्लांट्स. सो हम प्लांट्स वगैरह का यूटिलाइजेशन करते हैं. So this is a renewable source, right? Plants can be regrown. There are certain varieties of plant which can be grown earlier. So हम उस तरीके के plants को utilize करें तो क्या होगा? It would be a renewable source, right? Besides plant, there are certain organic waste also. Organic waste coming from farms, coming from households, right? That can be used. So that is what it is, a biomass energy, right? It is renewable and it is widely available. At the same time, it is carbon neutral, यानी कि ये environment friendly technology है. Environment friendly है. Carbon neutral कैसे है? Suppose ये plant आपने produce किया, ये plant grow किया, so इस plant को carbon dioxide चाहिए होती है for photosynthesis. So इसने क्या किया? Carbon dioxide को atmosphere से ले लिया, right? देन बाद में आप जब इन प्लांट्स को यूटिलाइज करते हो फॉर एनर्जी, सो आपने एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ, तो जितना इन्होंने लिया था उतना ही वापस दे दिया, तो क्या हुआ? कुछ एडिशनल कार्बन हमने तो एटमॉस्फेयर में नहीं भेजा. सो दैट इज व्हाई इट इज कार्बन न्यूट्रल एंड इसका ह्यूज पोटेंशियल है रूरल एरियाज में फॉर डेवलपमेंट ऑफ बायोमास एनर्जी. यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो इन रूरल एरियाज, राइट? So you can see trees and plants here, they are consuming
योर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज ट्रीज। फिर आप इनसे वुड प्रोडक्ट्स बना सकते हो, वुड प्रोडक्ट से ये बायोमास है, फिर पावर प्लांट्स में यूज हो सकता है, एंड देन CO2 इज बीइंग रिलीज्ड बाय दीज सोर्सेस। सो वी हैव नेक्स्ट इज बायोगैस। बायोगैस क्या है? ये आपका अगेन बायोमास से ही डिराइव होता है, राइट, एंड इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस कौन सी होंगी? प्राइमरीली दे वुड बी मीथेन। सबसे ज्यादा जो गैस अवेलेबल होती है बायोगैस में दैट इज मीथेन। उसके अलावा कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, एंड मॉइस्चर होता है। एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड? दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का विच इज बायोडिग्रेडेबल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी जहां पर होती है वहां पर आप जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको डिग्रेड कराते हो, तो वी प्रोड्यूस बायोगैस। बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू करीब 5000 किलो कैलोरीज पर मीटर क्यूब होती है, राइट। सो दिस यू कैन सी कि यहाँ पर कोई भी एनिमल वेस्ट है या फिर प्लांट वेस्ट है, सो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाइजेस्टर्स में डिकम्पोज कराते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें यहाँ पर जो गैस मिलती है दैट इज बायोगैस, जिसमें कि सबसे ज्यादा आपकी मीथेन होती है, राइट। फिर कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेस भी होती हैं, पर प्राइमरीली मीथेन होती है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, जिसको हम एनर्जी पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्लरी जनरेट होती है, कुछ वेस्ट जनरेट होता है जिसको हम डिकम्पोज कर देते हैं, राइट। सो अगर हम इंडिया में स्टेटस की बात करें, राइट, तो टोटल करीब 32% जो प्राइमरी एनर्जी यूज है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास, राइट, and more than 70% of the country's population is dependent on its energy need, right, for on these biomass based energy resources. So उसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसकी कुछ पॉलिसीज हैं बायोमास को डेवलप करने के लिए, बिकॉज इट्स अ कार्बन न्यूट्रल क्लीन फ्यूल, राइट। सो को जनरेशन प्रोग्राम्स है। को जनरेशन क्या होता है? It is actually where you are producing heat also and electricity also from the same source, same fuel से आप heat भी produce कर रहे हो, electricity भी produce कर रहे हो, उसको आप क्या कहोगे? को जनरेशन प्रोग्राम कहते हैं। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर? हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना है जहां पर बायोमास रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमली यूज कर पाए, बेटर तरीके से यूज कर सके। सो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स? क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं हम जो यूज करते हैं? दीज वुड बी द ऑर्गेनिक मैटर्स। सो राइस हस्क, स्ट्रॉ, बैगेसी विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से ये प्रोड्यूस होता है। स्ट्रॉ, कॉटन स्टॉक, कोकोनट, सोया हस्क, de-oiled cakes, coffee waste, these are actually coming from the agriculture, right? These are what? The agricultural waste. So इसको हम utilize कर सकते हैं. These are rich in hydrocarbons, right? These are organic matters, so इनको हम decompose कर सकते हैं in the absence of oxygen. तो उससे हम bio energy produce कर सकते हैं, right? Biodiesel produce कर सकते हैं. अगर हम इस तरीके के राइस हस्क है, राइट, बैगेसी है, मोलासेस है, इनको क्या करें? इनका फर्मेंटेशन कराएं, सो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल, उसको हम बायोडीजल, बायोफ्यूल्स में यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। देन इंडिया में पोटेंशियल क्या है? इंडिया में पोटेंशियल करीब 500 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ बायोमास हर साल प्रोड्यूस होता है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रेजिड्यूज से हम 18 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड बैगेसी यानी कि शुगर केन बेस्ड को जनरेशन करें तो 7 गीगावाट्स। एंड बैगेसी बेस्ड पावर जनरेशन शुगर मिल्स में होता है, राइट। तो शुगर मिल्स दे आर नॉट वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द पावर सप्लाई फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन पावर फ्रॉम बैगेसी. बैगेसी कम्स फ्रॉम शुगर केन इटसेल्फ. देन द टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं जो यूटिलाइज करते हैं, हम कंबशन करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं, गैसिफिकेशन करते हैं,
राइट. सो कंबशन में तो वी आर बस जला दिया, राइट. नॉर्मल जला दो किसी चीज को जाके. पायरोलिसिस में क्या करते हैं हम, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन या फिर नियर टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसी चीज को जलाते हैं. सो दैट इज एक्चुअली द पायरोलिसिस. देन वी हैव दिस गैसिफिकेशन. सो गैसिफिकेशन में भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन की कंडीशन में वी आर एक्चुअली गैसिफाइंग द रिसोर्सेस, राइट. देन कोजेनरेशन इन शुगर मिल्स इज डन बाय बैगसी. बैगसी को हम यूटिलाइज करते हैं एज अ फ्यूल. उत्तर प्रदेश में जो बायोमास एनर्जी का पोटेंशियल है दैट इज अराउंड 38 मेगावाट एंड पावर जनरेशन कैपेसिटी इज अराउंड 1331.4 megawatt is achieved in the private sector. स्टार मिल्स, राइस मिल्स, पेपर मिल्स, इन्होंने अपनी पोटेंशियल अपनी जनरेशन कैपेसिटी डेवलप की हुई है, राइट. एंड देन वी आल्सो हैव सर्टेन बायोमास पावर प्लांट्स इन उत्तर प्रदेश लोकेटेड इन गाजीपुर, मथुरा एंड कानपुर. ये 3 जगहों पर बायोमास पावर प्लांट्स उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, राइट. उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की एक बायोमास एनर्जी पॉलिसी भी है, राइट, जिसका पर्पस क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम दीज बायोमास रिसोर्सेज उनको बढ़ा सकें, राइट. टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट को और लेकर के आए. उसके अलावा रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके. रिन्यूएबल परचेज का क्या मतलब होता है कि ये जो डिस्कॉम्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स से इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, राइट. सो क्या होता है कि कोल बेस्ड रिसोर्सेज, कोल बेस्ड पावर प्लांट से वो इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं. सो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इन डिस्कॉम्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगा देती है. वो ऑब्लिगेशन कैसा होगा कि उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कुछ परसेंटेज जो है वो उनको उन प्लांट्स से इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ेगी जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो उसको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन कहते हैं. सो दिस इज बेसिकली डन सो दैट जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्लांट्स हैं उनको भी कुछ इंसेंटिव्स हो, उनसे भी कोई इलेक्ट्रिसिटी खरीदे, राइट. सो दैट इज रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन. एंड अगर आप उत्तर प्रदेश में बात करो, सो बैगसी बेस्ड को जनरेशन 1929.5 मेगावाट है. नॉन बैगसी बेस्ड को जनरेशन 159.76 गीगावाट है, सॉरी मेगावाट है. एंड टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर आप बात करो सो दैट इज अराउंड 2 गीगावाट्स एज ऑफ 31st December 2019, राइट. देन गवर्नमेंट की कुछ और इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसीज हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ renewable resources based power in UP, right. So there is Urja Park located in Lucknow Zoo, right. Then besides that the Border Area Development Program जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है 1999 में शुरू किया गया था. सो उत्तर प्रदेश में these are the areas बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर which lie on the borders, right, borders with Nepal. And so we have to develop these border areas. एंड बॉर्डर एरिया समटाइम्स दीज आर इनएक्सेसिबल, राइट. तो वहां पर इनएक्सेसिबल एरियाज में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करानी है, वहां पे अवेलेबल करानी है. सो वहां पर वी कैन ईदर प्रोवाइड इट फ्रॉम सोलर होम लाइट, सोलर पंप, सोलर वाटर हीटर, सोलर लैंटेन इन बॉर्डर एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कराने, राइट. देन वी ऑल्सो हैव दिस रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम. सो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इन विलेजेस एंड हैमलेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश जहाँ पे यूपीपीसीएल की जो सप्लाई है वो अवेलेबल नहीं है. सो अगेन इट इज बेस्ड ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. उसके अलावा वी ऑल्सो हैव दिस सोशल एरिया डिमॉन्स्ट्रेशन स्कीम, SADS, सोशल एरिया डिमॉन्स्ट्रेशन स्कीम. सो ये एनर्जी पार्क्स उत्तर प्रदेश में चलाती है. सो हमने ऊर्जा पार्क देखा था अभी लखनऊ जू में जो लोकेटेड है, that is being established or run by the social area demonstration scheme, right. So these schemes I discussed so that you have certain points. अगर question आता है even if it is asked in mains, right, कि what is the initiative, what are the initiatives taken by UP government to promote renewable energy in the state.
So you should have certain schemes of government which are there to promote renewable energy, so that you can mention those schemes that will fetch you marks. वो आपको वहां पे मार्क्स लाने में मदद करेगा अगर आप मेंशन करते हो उन स्कीम्स के बारे में, राइट. सो इसलिए आई हैव मेंशन दीज स्कीम्स हियर. ये अगर आप मेंशन करते हो अपने आंसर्स में तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा, राइट. So the question here, Obra Hydro Power Station located on. Again, this is a question asked in some exam in state, right? So this is located on Rihan River in Sonbhadra district. So again, I am mentioning these questions so that you have an idea कि किस तरीके से questions पूछे जाते हैं. Also, our discussions, they are comprehensive. You can utilize these discussions for your mains as well, right? As well as you get the information for prelims also, right? So this was it for the class today. We have completed energy resources, right? So thank you everyone.